یہی نوجوانوں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو سچا واقعہ ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نوجوانوں نے جب ایمان لے کے آیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آیا اور اس سے پہلے دقیانوں سے بچتے ہوئے ایمان لے کے آیا، اللہ کہہ رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، انہوں نے ایمان لے کے آیا اور ہم نے ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیا اور تقویت پہنچائی۔ اللہ کہہ رہا ہے نوجوانوں نے ایمان لایا، ہم نے اس کے ایمان کو مضبوط بنا دیا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کچھ نوجوانوں نے ایمان لے کے آیا فرعون سے بچتے ہوئے، ہم نے اس کو اور مضبوط کر دیا۔ میرے بھائیو، تو قرآن کے بہت سارے واقعات ہیں جو نوجوانوں کے تعریف میں، نوجوانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میں تھوڑی جلدی جا رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، اور ہم اپنے سماج کی طرف جب دیکھتے ہیں تو نوجوان کے اندر بہت سارے بگاڑ ہیں، کچھ بگاڑ کی طرف اشارہ کرتے جاؤں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، میدان حشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اولین والآخرین ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ رب العالمین حساب کتاب کے لیے عرش پہ مستوی ہوں گے، ایک ایک بندہ کر کے پکارا جائے گا، ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ بندوں سے سب سے پہلے 5 سوال کیا جائے گا، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، 5 سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ، بتاؤ تو نے اپنی زندگی کہاں گزار کر آیا تھا، اپنی زندگی میں کون سا اچھا عمل کر کے آیا تھا، تو نے اپنی زندگی کو دن کہاں گزارا، رات کہاں گزار کے آیا۔ میرے بھائیو، ایک سوال ہوگا اللہ کی طرف سے کہ زندگی کہاں گزارا تھا بتاؤ۔ دوسرا سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ نوجوانوں کے اوپر ہے سوال، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، زندگی تو گزارا چلو میں دیکھ لوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ جوانی کی حالت کو کہاں گزار کے آیا۔ اور نوجوانوں، روڈوں پہ چلنے والوں، سڑکوں پہ گھومنے والوں، چوک چوراہوں پہ بیٹھنے والوں، دکان میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا یہاں پر جلسہ ہو رہا ہے، یہاں پر دین کی باتیں ہو رہی ہے، تمہارے کانوں تک آواز جاتی ہوئی بھی تمہارے کانوں میں ایڑیاں نہیں چلتی ہے، تمہارے کانوں میں اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہی جوانی کے تعلق سے کل قیامت کے دن رب جب پوچھے گا، وہاں پر خطیب خطبہ دے رہے تھے، مقرر اپنے گلے آ کے آواز پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے تھے، تم اپنے دکانوں کو چھوڑ کر جانے کا گوارا کیوں نہیں کیا؟ چائے کی چسکیاں لیتی ہوئے، مزہ لیتی ہوئے بیٹھے رہ گیا، اور وہاں خطیب چیختے رہا، تمہیں پکارتے رہا، تمہیں اصلاح کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے وہ بولتے رہے، اور تم یہاں پر چپکے سے اپنے دکان میں بیڑی، سگریٹ، کھینی، جردہ، ساری حرام چیزوں کا سیون کرتے رہا۔ بتاؤ اپنی جوانی کہاں گزار کر آیا تھا؟ جلسے میں گیا تھا کہ نہیں؟ دین کی بات سنا تھا کہ نہیں؟ کچھ عمل کیا تھا کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں اپنی جوانی کو اس کے معشوقے میں گزار دیا؟ جلسے کی رات میں لڑکیوں کے پیچھے رہ کر، موبائل سے بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے رہ کر رات بتا دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں محبت کرتے ہوئے دین کو پیچھے چھوڑ کر صرف دنیا کے مست مولا ہو کر رہ گیا؟ بتاؤ جوانی کہاں گزر کر آیا؟ آج جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے رہو گے، سزا بھگتتے رہو گے، پسینے سے شرابور رہو گے، ایک قدم اٹھنے کی اجازت نہ ہوگی جب تک یہ 5 سوال کا جواب نہ دے دوں۔ میری ماں اور بہنیں، آپ بھی اگر میری بات سن رہی ہو تو سنیں کان کھول کر۔ آج کا موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، یہ بگاڑ کا سبب میں سے ایک سبب ہے۔ میرے بھائیو، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیز کو پہلے 5 چیز سے غنیمت جانو۔ شباب کا قبل حرام کا، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ غناؤں کا قبل فقر کا، غریبی آنے سے پہلے جو بھی مال ہے اس کو غنیمت جانو۔ صحت مندی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے تمہاری زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے دیا اسے غنیمت جانو۔ میرے بھائیو، کل قیامت کے دن سارا حساب کتاب لیا جائے گا، ہم بچ نہیں سکتے جب تک کہ جواب نہ دے دے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں
सुधर जाओ, कल क़यामत के दिन हिसाब का जवाब देना पड़ेगा, सवाल का जवाब देना पड़ेगा, पाए पाए का हिसाब देने पड़ेगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, कोई बच नहीं सकते। नौजवानों, तुम्हारी जवानी पे मुझे तरस आता है। यही नौजवान है, जन्नत जाएंगे तो नौजवान जाएंगे, बूढ़े लोग नहीं जाएंगे। मतलब बूढ़े लोग जाएंगे, जवान होके जाएंगे। जवानों की इतनी फजीलत है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है दीन को। अर्श के नीचे साया मिलेगा। ये जो छतरी है, यहाँ अगर शबनम गिर रहा हो तो बाहर वालों को नहीं बचाया जा सकता, जो इस पेंडेल में आएगा वो बच जाएगा। कल मैदान हशर में अर्श के नीचे 7 तरह के लोगों को साया मिलेगा। उनमें से एक खुशनसीब वो होगा जो ये जवान अपनी जवानी को शाबुन शफी इबादतिल्लाह ताला, अपनी जवानी को रब की इबादत में लगाया, रात को उठ उठ कर तहज्जुद पढ़ा, रब के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, आंसू बहाया। ऐसे नौजवान को अर्श के नीचे साया मिलेगा। मेरे नौजवान साथियों, आज जरूरत है तुम्हें इस्लाम की। आज मुल्क की हालात देखो, मुल्क किधर जा रहा है। आज आरएसएस के हाथ में है बीजेपी की सरकार। वो इस मुल्क को दंगाई बनाना चाहता है, इस मुल्क को वो मनोवाद और ब्राह्मणजात में बनाना चाहता है, मनुस्मृति लागू करना चाहता है, मुसलमानों को मिटाना चाहता है, इस्लाम को मिटाना चाहता है। हमारे मदारिस और मसाजिद पर तिरछी नजर पड़ चुकी है। हमारे मदारिस मसाजिद तोड़े जा रहे हैं। कल की रिपोर्ट है, यूपी के 1100 से ज्यादा मदरसे पर नजर है कि इसको बंद किया जाए। आसाम के मदरसे को गिराया गया, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, मथुरा की मस्जिद पर है, ज्ञानवापी की मस्जिद पर नजर है। नौजवानों, तुम्हें इस्लाम बहुत कुछ चाहता है, लेकिन अफसोस इस बात का है हमारे नौजवान राह हक से भटक चुके हैं, दीन इस्लाम से भटक चुके हैं, शरीयत से नावाकिफ हो चुके हैं। उनको समझाए तो समझाए कौन? यही जलसे, यही मदरसे, यही वाज़ नसीहत, यही खुतबे जिससे समझाया जा सकता है। लेकिन अफसोस है अभी भी जगह खाली। क्यों? इसलिए कि अभी भी हमने समझा ही नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों भेजा दुनिया में। हमने अपने टारगेट को समझा नहीं, हमारे बिगाड़ की वजह क्या है नौजवान के, अल्लाह ने क्यों भेजा इस मकसद को जाना ही नहीं, मकसद हयात को हम जाने ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का राय कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नौजवानों से अगर मैं पूछूं क्यों दुनिया में आए हो, क्यों दुनिया में भेजे गए हो, जवाब होगा ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी। खाओ पियो मौज मस्ती करो, 2 दिन की जिंदगी, और कुछ नहीं। नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह का मकसद कुछ और है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। और नौजवानों, 7 साल की उम्र तक तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है, तुम नमाज पढ़े कि नहीं, अल्लाह के मकसद को पूरा किया कि नहीं, और फिर तुम कहते हो कि हम क्यों दुनिया में और इस मुल्क में हिंदुस्तान में मार खा रहे हैं। क्यों नहीं खाओगे? तुम्हारे अमल बता रहा है तुम मार खाने के ही लिए तैयार हो। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह कह रहा है कि अच्छा अमल करो, मर्द हो या औरतें, जो भी नेक अमल करेंगे उसको अच्छी जिंदगी देंगे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो खा के अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अच्छे अमाल से हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया को समझो, साहबा ने समझा, सब कुछ पीछे छोड़ा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आगे बढ़ा। अपने आप को समझो। हमारे नौजवान बिगड़े हुए क्यों? 5-6 आपको असबाब बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। एक सबब तो बताया कि अपने मकसद को नहीं समझता है कि दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजा। दूसरा मकसद है कि हमारे नौजवान तालीम से दूर है, शिक्षा से दूर है, एजुकेशन से दूर है। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान के बच्चे 50% से ऊपर बच्चे मदरसे स्कूल नहीं जाते, अनपढ़े जाहिल गंवार है। कैसे हमारे नौजवान सुधरेंगे? जब तक तालीम नहीं लोगे तब तक इस्लाह नहीं होगी। और तालीम की जिम्मेदारी मदारिस मकातिब उठा रहे हैं। इस मदारिस और मकातिब की नज़र रखो। ये जो आपको टीना का घर दिख रहा है, ये टीना का घर नहीं है। हमारी नज़र में टीना का घर हो सकता है, अल्लाह के यहाँ सब घरों से बेहतर घर है, सब घरों में सबसे बेहतर घर है। इनकी तरफ नजर रखो, इनको आगे बढ़ाओ, बच्चों को दो, बच्चियों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, तभी हमारा समाज खुशगवार हो सकता है, हमारा समाज साफ सफाई हो सकता है, हमारे नौजवान इस्लाह हो सकती है। वरना हमारे नौजवान जिस दिहाने पे जा रहा है, बिल्कुल दूर नहीं वक्त कि वो नौजवान हमें भी जहन्नम ले जाएगा। तीसरा ये है कि हमारे नौजवान के साथ तरबियत नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, अपने छोटे छोटे बच्चों को तरबियत दो। आज के बच्चे इतने बिगड़े हुए क्यों है? इसलिए कि उनके माँ उनके बाप ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो बच्चा बिगड़ेगा तो नहीं क्या होगा? मानिए आप एक बात मिसाल के साथ सुनिए,
एक पौधा जब उग रहा है ना तो कोपल होता है, नरम होता है, टेढ़ा हो गया सीधा कर दीजिए सीधा हो जाएगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा, तनावर हो जाएगा, वो दरख्त को सीधा नहीं कर सकते। आपका बच्चा 6-7 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको सीधा करना चाहे तो सीधा कर सकते हैं। अगर 15 साल से ऊपर हो गया, आप एक थप्पड़ मारेंगे, वो उल्टा आपको आंख दिखाएगा। आप उसको मारने की बात करेंगे, वो उल्टा आपको जवाब देगा। आप एक गाली देंगे, वो 2 गाली देके भागेगा। आप उसको भगाने की बात करेंगे, आपके कहने से पहले टिकट लेके घर से भाग जाएगा। इसलिए अपने नौजवान को, अपने बच्चों की तरबियत पहले करो। माँ के जिम्मे बहुत जिम्मेदारी है, सिर्फ बच्चा पैदा कर लेना एक बड़ी बात नहीं है। नौजवानों को तरबियत देना माँ बाप के जिम्मे है। बच्चा पैदा करना अगर बड़ी बात होती तो जानवर भी बच्चा पैदा करके छोड़ देता है। उसमें और मुसलमानों में क्या फर्क रहा? मेरी माओ, मैं आपको बताऊं, एक चोर पकड़ा गया, हाथ काटने का हुक्म, काजी ने कहा हाथ काटो, ये चोर है। बच्चा को चोरी की वजह से सजा दी हाथ काटने की। बच्चा ने कहा नहीं काजी साहब रुक जाइए, इक़्ताउ लिसान उम्मी क़ब्ल अन तक़्तु यदी, मेरा हाथ काटने से पहले मेरी माँ की जुबान काटिए। काजी साहब ने कहा क्यों? तुम्हारी माँ की जुबान काटे चोरी, तुम क्या हो, हाथ तुम्हारा काटा जाएगा। कहा कि काजी साहब, मैं जब घर से किसी के घर से अंडा चुरा कर लाता था, किसी के घर से रस्सी चुरा कर लाता था, किसी के घर से कोई सामान चुरा कर लाता था, माँ को देता था, माँ को सुजाया करते थे, कहते अल्हम्दुलिल्लाह सारा यौम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बड़ा हो गया है। काजी साहब, अगर वो मेरी माँ मुझे एक थप्पड़ मार कर वो अंडा घर पे वापस करवाने के लिए मुझे मजबूर करती, अगर मुझे माँ मेरी एक थप्पड़ मार कर मुझे इस्लाह करती तो आज मैं चोर नहीं बनता, आज मेरा हाथ ना काटा जाता। इसलिए काजी साहब, मेरा हाथ काटा तो जाएगा ठीक है, लेकिन मेरी माँ की जुबान काटिए, मेरी माँ को पहले सजा दीजिए। मेरे भाइयों, ये है बच्चों की तरबियत कीजिए। हमारे नौजवान बिगड़े हुए क्यों? एक और सबब है, ये सोशल मीडिया, मोबाइल की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं। आप अपने बच्चों की तरफ नजर दौड़ाइए, जहां देखिए 2-4 बच्चे बैठे मोबाइल चला रहा है, वीडियो चला रहा है, पबजी खेल रहा है, फायर खेल रहा है, ड्रीम 11 चला रहा है, और न जाने क्या क्या खेल चल रहा है। आज मोबाइल ने हमारे बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया है। मेरे भाइयों, मोबाइल हमें कितना नुकसान क्या है, माली नुकसान करता है, जिस्मानी नुकसान करता है, इक़्तिसादी नुकसान करता है, हमारे हर एतबार से नुकसान है। एक मोबाइल हमारा माली नुकसान क्या, महंगा मोबाइल लेने की जरूरत क्या है? बच्चा बाप को पैसा नहीं देता है, पैसा लेके महंगा मोबाइल खरीदेगा, पैसे के नुकसान है। नेट पैकेज डालता है, पबजी खेलता है, गेम चलाता है, पूरा पैसा उसमें लगाता है, ये फजूल खर्चे। ला तुबज़िरु तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान अश-शयातीन। बच्चे बिगड़ चुके हैं हमारे फजूल खर्चे में, मोबाइल की वजह से। और जिस्मानी नुकसान भी है मोबाइल से, घंटों बैठकर मोबाइल देखेंगे, मोबाइल की स्क्रीन से जो रोशनी आती है आंख में डायरेक्ट टच करती है, पहुंचती है, हमारी आंख की रोशनी कम होती है। 10 साल बाद उसको चश्मा जरूर लगाना पड़ता है, आंख की रोशनी खत्म होती है, और जिस्म में हार्ट का प्रॉब्लम आता है, जिस्म भारी भरकम हो जाता है, बहुत सारे नुकसान है। इसके साथ साथ मोबाइल में अखलाकी नुकसान बहुत क्या है। हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, मुझे अफसोस इस बात से है कि शादी से पहले लड़की के हाथ में मोबाइल क्यों दिया जाता है। वो माँ क्या करती है, शादी से पहले जवान बेटी घर में है, उसके हाथ में मोबाइल क्यों जाता है, किससे बात करती है, घंटे बाद किससे वो चलाती है। कभी माँ ने गौर किया है इस बात को? घर के पीछे जाके, किसी कमरे में छुप के, किसी घर में छुप के, कहीं उधर जाके छुपा कर बात करती है। माँ जानती है सारा कसूर माँ का है। मेरे भाइयों, आज बेहयाई, अखलाकी गिरावट, बेशर्मी जहाँ तक आई है, ये मोबाइल की वजह से। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। अभी एक वीडियो आया है, अपने बच्चों को 10 साल 15 साल और बालिग होने तक उसके हाथ में मोबाइल ही ना दिया जाए, जब कोई लाइन पे लग जाए तब मोबाइल दिया जाए। मोबाइल से हमारे सारे लोगों को नुकसान क्या है। एक और वजह है, हमारे बच्चे अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। हमारे नौजवान को देखिए, अभी एक मिस कॉल आएगा दौड़ पड़ेंगे, अभी किसी लड़की का गलती से भी नंबर आ जाए तो उसको बार बार ट्राई करेंगे। नौजवानों, अपने नफ्स पे कंट्रोल रखो। तुम्हारा नफ्स शैतान हावी हो चुका है। वला तत्तबि खुतवत शैतान, शैतान को हावी मत होने दो। अल मुजाहिदु मन जहद नफ्सहु, जिहाद से, अपने नफ्स से जिहाद करो। ये नफ्स अम्मारा है, इंसान को बुराई की तरफ माइल करता है। ये नफ्स अम्मारा इंसान को हर कार्य खैर से रोकता है। जो ललक वाली, जो चमक वाली, जो दमक वाली चीज़ है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, इस नफ्स को रोको। नफ्स हमें बुराई की तरफ
तरफ ले जाता है। हजरत उमर फारूक के दौर में हजरत उमर फारूक अपने सहाबा इकराम को साथियों को लेकर बैतुल मक़दस जा रहे हैं और वहाँ पर यहूदियों ने देखा कि मुसलमान यहाँ पर आके हमारा बैतुल मक़दस फतह कर रहा है। जब देखा कि हजरत उमर अपने सहाबा को लेके जा रहे हैं, यहूदियों ने बहुत बड़ी चाल खेली। क्या? उन्होंने अपनी लड़कियों को, दो सिजाओं को, हसीन और जमील खूबसूरत लड़कियों को रास्ते में ला के खड़ा कर दिया ताकि जब सहाबा इकराम उधर से गुजरे तो इस लड़की के जुल्फ के असीर बन जाए, लड़की के हुस्न के पीछे पड़ जाए, लड़की को देखकर उसके गिरह में फंस जाए, उसके साथ बुराई पर मुब्तला हो जाए तो अपना काम छोड़ देगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, यह मंजर देखा कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हजरत उमर फारूक ने कुरान की एक आयत पढ़कर सारे मुसलमान और सहाबा के आंखों को नीचे कर दिया और कहा, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ऐ मोमिनो, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो अपनी नजरें नीची रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, ये उनके लिए बेहतर है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक जब ये कुरान की आयत पढ़े, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन अपनी नजरें नीची कर लिए, उन हसीन और जमील खूबसूरत लड़कियों की तरफ नजर उठाना गवारा न क्या, किसी ने आंख उठाना गवारा न क्या, वो सब के सब खड़ी के खड़ी रह गई और ये सीधे रास्ते पार करके जाके बैतुल मक़दस फतह कर लिया। और नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर अभी तुम्हारे पास किसी लड़की का एक कॉल आ जाए तो तुम उस लड़की को क्या कहोगे? कॉल बैक करके गाली दोगे या एक्सक्यूज मी, हेलो, आई एम फला फला, या बात आगे बढ़ाओगे? बताओ तुम्हारे ईमान को कौन डाका डाला है? नफ्स पे कंट्रोल रखो, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। अन्निसाउ हबाइलु शैतान, लड़कियां शैतान के हथकंडे हैं। शैतान जब मोमिनों को बहका नहीं पाता है तो लड़की और औरतों के शक्ल में बहकाता है। इसलिए अपने नफ्स पे कंट्रोल को, यही तुम्हें जन्नत ले जाएगा। नफ्स पे अगर कंट्रोल नहीं रखोगे जहन्नम चले जाओगे। एक और सबब हमारे नौजवान के बिगड़ने का वो है कि शादी में देरी करना। हमारे नौजवान शादी में देरी करते हैं और गार्जियन भी देर करते हैं। शादी में हरगिज़ देर नहीं कीजिए। या माशरा सबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतजव्वज़ फ़इन्नहु अग़ुद्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। ऐ नौजवानों, तुम जवानी के दहलीज पे कदम रख लिए हो, तुम्हारी उम्र जवानी तक पहुंच गई है तो शादी कर लो। शादी करोगे नजरें झुकी रहेगी, शर्मगाह की हिफाजत होगी। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, उम्र हो गई तो शादी कर लो, बहुत सी बुराई से बच जाओगे। हमारे बहुत से गार्जियन क्या करते हैं, अच्छा घर आने दो, अभी लड़की की शादी नहीं देंगे, अच्छा लड़का होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, मालदार होना, हरगिज नहीं। फस्फुर बिज़ाति दीन, गरीब लड़का है, अखलाकमंद है तो शादी कराओ। अपनी बेटी को किसी मालदार घराने से शादी देकर उसको बेचैन रखने से बेहतर है कि गरीब घर में शादी हो और वो खुशहाल रहे। और शादी को महंगी मत बनाओ, शादी को आसान बनाओ। आज हमारी शादियां महंगी हो गई है और नौजवानों की जिम्मे है ये काम करना। तुमने जहेज लेकर हमारे बड़े बुजुर्ग बापू के आंखों में आंसू डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज ये जहेज की वजह से बहुत सी शादियां देर से होती है। मेरे भाइयों, जहेज की लानत से अपने आप को बचाओ, समाज को बचाओ। जहेज एक ऐसी लानत है जो हमारे मुसलमान माओं को भी घर से बेघर कर दिया। बहुत सी औरत आती है ना मांगती हुई, कहती है कुछ मांगने के लिए आई हूँ। का क्यों? का बेटी की शादी है जहेज में और ये फला है। और नौजवानों, तूने एक माँ को बेघर कर दिया, एक गरीब बाप के आंखों में आंसू लेके आ गया। जहेज के लिए कितने हमारे बाप कर्ज में डूब जाते हैं। एक मीर तकी मीर ने अपने बेटी को जहेज के लिए सारा सामान दिया, लेकिन कुछ सामान कम पड़ जाने के बावजूद उन सालिम ने उनकी बेटी को कत्ल कर दिया। मीर तकी मीर ने ये शेर पड़ती हुई आंखों से आंसू पोंछते कहा था, अब आया ध्यान, आया रमजान, इस्लाम मुरादी में कफन देना भूले थे हम तुझे सामान शादी में। 2 गज कफन भी दे देता तो क्या कम पड़ जाता, कम अज कम तेरे बाप के तरफ से आज तुझे कफन तो मिल जाता। मीर तकी मीर ने कहा, वो जालिम हो, मैंने तो सारा सामान दे दिया था अपनी बेटी के जहेज में, लेकिन फिर भी कम होने की वजह से मेरी बेटी को तूने कत्ल कर दिया। ओ मेरे भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज जब अखबार पढ़ा जाता है, टीवी ऑन किया जाता है, वीडियो आता है तो कहा जाता है कि
पहले किसी सीता गीता हिंदू नाम आता था कि उन्होंने अपनी बीवी को जहेज की वजह से मार दिया, किसी सास ने अपनी बहू को, हिंदू बहू को जहेज ना लाने की वजह से पेट्रोल छिड़क कर मार दिया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, आज मुसलमानों की तरफ देख के कहना पड़ता है, जब अखबार पढ़ा जाता है तो उस अखबार में हिंदू की लड़कियों का नाम कम आता है, मुसलमान लड़कियों का नाम आता है कि किसी में फातिमा को उसके शोहर ने जहेज ना लाने की वजह से पेट्रोल छिड़क कर मार दिया। किसी और नाम आता है, ज़ैनब का नाम आता है, फातिमा का नाम आता है, आयशा का नाम आता है, मुस्लिम लड़कियों का नाम आता है कि उनके शोहर ने, उनके सास ने, उनके ससुर ने इनको जहेज ना लाने की वजह से मार दिया। और मेरे भाइयों, तू क्या जानोगे, एक बाप अपने बेटे को कितनी मेहनत से पालता है, एक बाप अपनी बेटी को कितने प्यार और मोहब्बत के साथ पालता है, और फिर उस मोहब्बत को तुम्हारे हाथ में दे देता है। ये क्या कम कुर्बानी है? फिर भी नौजवानों, तूने जहेज मांगकर और गाड़ी मांगकर और लाख रुपए और अपच और ये गाड़ी मांगकर एक गरीब के आंखों में आंसू लेके आया। गरीब की आह से बचो मेरे नौजवानों, गरीब की आंखों में आंसू ना लाओ। तुम तो जवान हो, अल्लाह ने हाथ में ताकत दिया है, पाँव में कुव्वत दिया है, तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक है, बॉडी तुम्हारी ठीक है, तुम्हें तो कमा कर अपनी दौलत कमानी चाहिए। आज नौजवानों, दौलत के लिए भी मरता है, दौलत के पीछे मत पड़ो, ये दौलत हमारे लिए रहने वाली नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा मालदार ऐसे बना देगा और जिसको चाहेगा गरीब ही रखेगा। आज हमारे नौजवानों के बिगाड़ने का सबब एक ये भी है कि दौलत के पीछे भागता है, रात को दिन, दिन को रात कर रखा है। अल्लाह का है वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, हमने दिन बनाया काम के लिए, रात बनाया आराम के लिए। नौजवानों को देखो, रात में रोडों पे यहाँ वहाँ काम के लिए, और रात में जाग जाग कर ड्रीम इलेवन ना फला चीज़ के लिए। मेरे भाइयों, दौलत के पीछे मत भागो नौजवानों। हमारे नबी का वाक़या, अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमीतनी मिस्कीना व अशुरनी फी दुमरतिल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मुझे मालदार ना बनाना, मुझे गरीबी की हालत में रखना, मैं दुनिया में गरीब होकर रहूं, मैं दुनिया में गरीबी की हालत में जिंदा रहूं। जब मौत हो तो गरीब की हालत में मौत हो, जब दोबारा क़यामत के दिन उठाया जाऊं तो गरीबी की हालत में उठाया जाऊं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार बनने की ख्वाहिश नहीं की। अल्लाह ने कहा, ऐ मोहम्मद, इशारा करो तुम्हारे लिए सोना बना दूं, पहाड़ को सोना कर दूं। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं नहीं अल्लाह, मुझे तो एक दिन खाना चाहिए, एक दिन भूखा रहना है। जिस दिन मैं खाना खा लूं तेरा शुक्रिया अदा करूं, जिस दिन मैं भूखा रहूं तेरे सामने रोऊं गिड़गिड़ाऊं। और नौजवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल देने की पेशकश की गई, ठुकरा दिया गया। अल्लाह के नबी को जब हुक्म वअंदिर अशरातकल अक़रबीन, ऐ मोहम्मद जाओ लोगों को दावत दो। जब दावत देने लगे, अपने लोग दुश्मन हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अबू तालिब के पास मक्का के कुरैश लोग आए और कहा कि अबू तालिब, अपने भतीजा को समझाओ कि ऐसा ना कहे, हमारे माबूद के खिलाफ ना करें। अगर मोहम्मद माल चाहता है तो माल दे देंगे, खूब हसीन जमील लड़की से शादी करना था तो वो दे देंगे, लेकिन हमारे माबूद को बुरा भला ना कहें। अल्लाह के नबी जब घर आते हैं, देखते हैं कि चचा का सर झुका हुआ है। कहा, चाचा क्या बात है, आज क्यों मगमूम लग रहे हैं? चचा अबू तालिब ने कहा, बेटा क्या बताऊं, दुश्मन आए थे, कुरैश आए थे और वो कह के गए कि मोहम्मद अगर मालदार बनना चाहता है तो माल दे देंगे, बादशाह बनना चाहता है तो बादशाह बना देंगे, अगर लड़की से खूबसूरत लड़की शादी करना चाहता है वो भी करा देंगे, लेकिन हमारे माबूदों को ना बुरा भला कहे। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे मेरे चचा, अगर वो मेरे एक हाथ में सोना, एक हाथ में सूरज, दूसरे हाथ में चांद भी ला के दे दे तो मैं हक को हक कहने से नहीं पीछे हटूंगा, मैं बुरा को बुरा कहने में पीछे नहीं हटूंगा, सच को सच ही कहूंगा, झूठ को झूठ ही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा, अच्छे को अच्छा ही कहूंगा। ए मेरे चचा, मुझे माल देने की बात करता है, मैं उन माल को नहीं चाहता बल्कि अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाना चाहता। नौजवानों, माल के लिए अपनी जवानी को बर्बाद ना करो। नौजवानों, तुम इस कौम की बेहतरीन सरमाया हो, तुम्हारे जिम्मे है समाज को ऊंचा करना, तुम्हारे जिम्मे है लोगों को आगे बढ़ाना, तुम्हारे जिम्मे है समाज को खुशगवार करना, तुम्हारे जिम्मे है अपनी माँ बहन की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना, तुम्हारे जिम्मे है पड़ोस की बेटी की हिफाजत करना, तुम्हारे जिम्मे है गांव की लड़कियों की हिफाजत करना। तुम ही आवारा बनोगे, तुम ही गुंडागर्दी करोगे, तुम ही राह हक से भटके रहोगे। बताओ ये समाज कहाँ जाएगा?